اب بات کریں گے عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے شرپسندی کے واقعات کی۔ تحریک انصاف کے مشتعل کارکنوں نے عمارتیں چھوڑی، نہ سرکاری املاک۔ لاہور میں جناح ہاؤس میں دھاوا بولا، آگ لگائی توڑ پھوڑ کر کے، ساتھ ساتھ جس کے ہاتھ جو آیا اپنا سمجھ کر چلتا بنا۔ سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم اس وقت جناح ہاؤس میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ حبیب اکرم صاحب، یہ بتائے گا جناح ہاؤس میں آپ موجود ہیں، گزشتہ روز جلاؤ گھیراؤ کے اور پرتشدد واقعات جو پیش آئے ہیں اس کے بعد جناح ہاؤس کا کیا حال ہے ابھی؟ دیکھیے، آپ کو میرے پیچھے جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ ہے اوریجنل جناح ہاؤس، اور میں اس وقت اسی عمارت کے لان میں موجود ہوں۔ اور اگر یہ آپ دیکھیں تو چاروں طرف سے اس عمارت کو میں نے گھوم کے دیکھا ہے، یہاں پہ آپ کو آگ نظر آ رہی ہے باقاعدہ طور پر۔ جو سفید عمارت تھی وہ سیاہی مائل ہو چکی ہے، اور جتنی بھی لکڑی کی کھڑکیاں تھی وہ سب باقاعدہ طور پر جلائی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ ارد گرد جو گاڑیاں ہیں وہ ظاہر ہے جو ملبہ بن چکی ہیں چیزیں یا کوئلہ ہو چکی ہیں، ان چیزوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی گاڑی ہے اس وقت یہاں پر، اور اسی کا عملہ یہاں پر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سب لوگ میں آپ کو اس گھر کے اندر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اندر سے دیکھیے کہ صورتحال کیا تھی۔ یہ اس گھر کا آپ یوں کہیے کہ پائیں باغ کے ساتھ جو کمرہ ہے، جسے آپ ڈرائنگ روم بھی شاید کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پر اس وقت کام جاری ہے، اور یہاں پر لوگ یہ لکڑی، جلی ہوئی لکڑی وہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیواروں کا رنگ دیکھیے کہ جس طرح جب آگ لگی تو آگ لگنے کے بعد دیواروں نے اپنا پلستر چھوڑ دیا۔ یہ کافی پرانی عمارت ہے، اور جناح ہاؤس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ قائد اعظم بھی آ کے ٹھہرے تھے، اور اس کے بعد سے یہ کور کمانڈر کا گھر ہے۔ آپ وہ دیکھیے کہ اوپر پنکھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنکھے کا اندرونی حصہ جو ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو جتنی بھی اس کی باڈی تھی اور جو اس کے بلیڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اب ذرا یہیں سے آگے چلیے، میں ابھی عمارت کے بالکل باہر ہوں، اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک لاؤنج ہے جس کا دروازہ یہ لان میں کھلتا ہے، اور اس لاؤنج میں بھی آپ دیکھیے کہ فرش کی حالت، کہ فرش مکمل طور پر غالباً ہیٹ کی وجہ سے یہاں پر پھٹ چکے ہیں، اور فرش جگہ جگہ سے بڑا اچھا فرش ہے، جو حصہ اس کا باقی ہے وہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن جہاں جہاں پہ غالباً آگ لگی ہے وہاں پر ہمیں نہ صرف کوئلہ نظر آ رہا ہے اور پوری فضا میں جلے ہوئے ہونے کی بو پھیلی ہوئی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرش وہاں سے پھٹ چکا ہے۔ یہ عام طور پہ اس طرح کی اپنے الماریاں دیکھی ہوں گی کہ گھروں میں سجاوٹ کے لیے اور تزئین و آرائش کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور دروازوں کے شیشے کس طرح ٹوٹے ہوئے ہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو اسی گھر میں جہاں سے سامان اکٹھا کیا گیا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں۔ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ الیکٹرک سوئچ ہے، اس وقت یہاں پر بجلی کا بندوبست نہیں ہے، بجلی ساری کاٹ دی گئی، بند کی گئی ہے، تاکہ یہاں پہ خدا نخواستہ بجلی کی وجہ سے جو گھر ہے اس کو مزید نقصان نہ پہنچے، یا کوئی اور جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں تو ہاتھ نہ لگ سکے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوئچز کی کیا حالت ہے۔ یہ وہ سامان ہے جو اس گھر سے نکلا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ میں یہ دروازے کے پاس سے گزرا ہوں تو یہ یہاں سے مجھے ہیٹ محسوس ہوئی ہے، تو یہ دروازہ ابھی تک اندر سے جل رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس کو یعنی اس وقت بھی اس کو ہاتھ لگانا مشکل ہے، یہ دروازہ اس وقت بھی اندر سے جل رہا ہے۔ اور یہ فرنیچر ہے جو یہاں پر جلایا گیا، اور یہ جلنے کو دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ باقاعدہ طور پر کچھ لوگ ایسے تھے، شاید کسی کے پاس کوئی آتش گیر مادہ بھی تھا۔ یہ بھی دیکھ لیجئے اس گھر کے باتھ رومز ہیں، بہت عالی شان گھر نہیں ہے لیکن وسعت ہے اس گھر میں ضرور، اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کس طرح سے چیزیں اور ملبہ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے، اور ٹائلیں اپنی جگہ چھوڑ چکی ہیں۔ اب اس میں کچن ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے کچن، اور کچن کی کیا صورتحال ہے کہ کچن میں ہمارے اور بھی دوست صحافی یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ہے اس کا کچن۔ کچن میں اگرچہ بہت زیادہ توڑ پھوڑ اندر نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ اس کے دروازے ہیں، اور یہ دروازہ جو غالباً گھر کے ایک حصے کو دوسرے سے الگ کرتا ہے یہ ہے۔ یہاں سے بھی ابھی تک ہیٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن بہرحال یہ آگ بجھائی جا چکی ہے۔ یہ دروازے ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی قائد اعظم یہاں پہ رہے ہوں تو انہوں نے ان دروازوں کو ہاتھ بھی لگایا ہو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ذرا آگے آئیے تو اس گھر کا
ये हिस्सा आप ऊपर देखें तो ऊपर भी लकड़ी का काम था और एक गुंबद नुमा जगह थी, जो इसके आसार हैं वो बता रहे हैं कि वो भी तोड़ दी गई है। और तरह यहाँ पे इस घर में कुशादा राहदारियां हैं और ये तरह ये भी एक कमरा है और यहाँ पे खड़ा होना अब भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो आग है वो यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ का टेम्परेचर मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जैसे ही आग बुझे, खुदा न खास्ता कहीं लगे और आप किसी कमरे में दाखिल हों, बतौर रिपोर्टर मुझे इस चीज का तजुर्बा है, तो इस वक्त भी यहाँ पे शदीद गर्मी है और बाकायदा तौर पर महसूस हो रहा है कि ये जो ऊपर आपको लोहे का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये गर्म है, ये शायद अब तक ठंडा नहीं हुआ। टाइलें इस कमरे की भी हीट की वजह से उखड़ चुकी हैं। ये शायद यहाँ पे तो बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आग जल रही है और इतनी गर्मी है कि यहाँ पर दाखिल होना शायद खतरे से खाली नहीं है। मतलब अब भी इतनी शदीद गर्मी है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि छत भी फट चुकी है और आप देख रहे हैं कि दीवारें किस तरह, दीवारों का पलस्तर अपनी जगह छोड़े हुए हैं। ये जब भी किसी जली हुई इमारत में आप दाखिल हों तो आपको ये पहली चीज जो उसकी निशानी नजर आती है कि यहाँ पे गैर मामूली तौर पर हीट थी, जिसकी वजह से दीवारें टूटना शुरू हो गई या फटना शुरू हो गई। ये देख लीजिए कि ये भी इसके साथ यहाँ पर भी उसी तरह शदीद गर्मी है। गालिबन दीवारें अब तक गर्म है, बल्कि मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि थोड़ा सा मुझे खौफ भी महसूस हो रहा है क्योंकि इमारत की हालत काफी मखदूश है और मेरे साथ और नौजवान भी हैं। ये खिड़कियां थी इसलिए कि अब ये दर का काम कर रही हैं। जहां से कभी सिर्फ रोशनी आने का सामान था, वो आज वो रास्ता बन चुकी है। ये आप देख लीजिए कि यहां पर ये सारी जो इंटरनल जो भी सीलिंग थी, फॉल्स सीलिंग वगैरह, वो सब आसार से लग रहा है कि शायद यहाँ पे फॉल्स सीलिंग होगी किसी किस्म की, तो वो सब की सब जली हुई इस वक्त पड़ी हुई है। और ये सारा जिनाह हाउस के अंदर की सूरत हाल आप देख रहे हैं। यहाँ पे वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के लोग भी अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था। और छोटी सी जो कहीं छतरियां लगाई गई थी वो देख रहे हैं आप कि वहां पर भी उन्हें भी बाकायदा तौर पर जला दिया गया है। ये उस घर का पिछला हिस्सा है। ये घर मैं आपको बताऊं कि इसमें एक जो यानी इस घर की खास बात यह है कि पुराने तर्ज के जो घर थे उनमें बाकायदा तौर पर एक बड़े घरों में ये इल्तजाम किया जाता था कि वहां पर जो चारों तरफ उसकी खुली जगह हो। अब जरा ये है बरामदा। ये पुराने तर्ज के घरों में ये बड़ी एक खूबसूरती रखी जाती थी कि घर को चारों तरफ से और बिल्कुल उस पिछले हिस्से में बरामदे रखे जाते थे और सामने एक लाइव आपको यानी जहां लॉन नजर आता था। यहां पे भी आप सामान देख रहे हैं कि गमले टूटे हुए हैं और पौधों पर भी आसार आपको नजर आ रहे हैं आग के। और आग घर के अंदर लगाई गई है, लगी, और बाहर जो है वो नहीं लगी। आज मुझे एक और बात पता चली, मैं आपको इस घर के दूसरे हिस्से में भी लेके जाना चाहता हूं। आज मुझे जो इस घर में आने से पहले एक बात पता चली कि घर वालों ने मुजाहिरीन के रास्ते में रुकावट नहीं डाली थी, बल्कि ये कहा था कुछ लोगों ने, यानी घर के अंदर जो खवातीन मौजूद थी, उन्होंने कहा कि खवातीन और बच्चे अगर आना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुर्सियां भी रखवाते हैं, उन्हें चाय भी पिलाते हैं। मतलब लेकिन जब दरवाजा बस खुला या तोड़ा गया तो उसके बाद की सूरत हाल आप यहां पर देख सकते हैं कि फिर क्या हुआ। अब मैं आपको इस घर का, ये तो है बगली हिस्सा, अब मैं आपको इस घर के जरा सामने वाले हिस्से से भी अंदर लेके जाता हूं कि ये आप वो सामने देख रहे हैं कि दरवाजा है। वो दरवाजा इस घर में आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है और ये है बुनियादी तौर पे उस घर का सामने का हिस्सा। ये सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और यहां पर भी बाकायदा तौर पर ट्रैक्टर और ट्रॉलीज की मदद से, मशीनरी की मदद से
अभी बकरम इस वक्त मौजूद हैं जना हाउस में, वहाँ की हालत ज़ार दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो जलाओ घिराव हुआ, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उसके बाद ये हालात हैं। इस घर के सामने के हिस्से से अंदर लेके जाता हूँ। ये है इस घर का सामने का हिस्सा और गालिबन मेहमानों का इंतज़ाम यहीं पे होता है और यानी यहाँ पे उनके बैठने का बंदोबस्त होता है। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल कमरा उसी तरह है जैसे ड्राइंग रूम है और यहाँ पर फानूस जो लगाया गया था उसकी सूरत हाल भी आप देख सकते हैं कि क्या है। वो एयर कंडीशनर था, वो आप देख लीजिए कि उसकी बाकियात आपको नजर आ रही हैं कि इतनी इस घर की छतें जो हैं वो कम से कम आमतौर पे घरों की छत कोई 10-11 फीट की होती है, लेकिन ये छत जो है इस हिस्से में आपको नजर आ रही है कि काफी बुलंद है, यानी तकरीबन ये 20 फीट, मेरा अंदाजा है कि 20 फीट के करीब इसकी हाइट होगी। पुराने घरों में ये अरेंजमेंट इसी तरह किया जाता था। ये देख लीजिए इसमें लगे हुए एसी की सूरत हाल। ये भी इसके साथ एक कमरा है और इस कमरे की भी आप सूरत हाल देख लीजिए और सामने एक छोटी सी एनेक्सी है कि वहां पर आप देखें कि क्या कुछ नजर आ रहा है। और फिर इस घर में एक, चूंकि काफी बड़ा घर है और एक सीनियर ऑफिसर की रिहाइश गाह भी होती है और सीनियर ऑफिसर भी तो हमारे ही हैं, हम ही हैं। ये उसका एक छोटा सा पूल है, कोई गैर मामूली तौर पे बड़ा नहीं, इस तरह का मैंने बहुत से घरों में देखा है। ये आप देख रहे हैं कि इसके शीशे बाकायदा तौर पर तोड़ दिए गए हैं और ये घर का पीछे का हिस्सा है। यार यहाँ पे वो कहाँ पे गाड़ियां कहाँ खड़ी थी, ये जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि इस घर में जो गैराज था वो क्या है, जहां पर गाड़ियां खड़ी होती थी। और यहां पे ये है वो हिस्सा, यहां पे एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है और यहां पे ये गाड़ियां यहां पे खड़ी होती थी। ये देख लीजिए गैराज का बंदोबस्त किया हुआ था यहाँ पे, घर से एक छत बना के एक शेड बनाया हुआ था ताकि गाड़ियां उसके नीचे खड़ी हो सकें। ये आप इसकी हालत देख रहे हैं। तो ये जो दरवाजा है, ये इसको आप इस घर का बगली दरवाजा कह सकते हैं कि इस घर से मतलब शायद ये जो मस्जिद में आने वाले लोग हैं या गाड़ियों में या मुलाजमीन इस घर के, वो शायद इस तरफ से आते हैं। ये मस्जिद है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद का भी आप देख लीजिए कि दरवाजे का, ये मॉस्क है और यहाँ पे इसका दरवाजा टूटा हुआ है। यहाँ पर भी बाकायदा तौर पर आग के असरात दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो मुझे बताया गया है कि यहाँ से उठा ली गई हैं। ये शायद मुलाजमीन का और रहने के दीगर घर के अंदर जो छोटे मोटे जिम हैं, शायद वो जिम का कुछ सामान यहाँ पर पड़ा नजर आ रहा है और शायद इसी हिस्से में किचन का भी काम होता होगा, क्योंकि यहाँ पे एडमिन ऑफिसर की भी एक जगह है कोर कमांडर हाउस में, जना हाउस में। ये देख लीजिए, ये हिस्सा इस कमरे की बाकायदा तौर पर, ये जो भी था इसकी छत बाकायदा तौर पर गिर चुकी है और लोहा जो है वो अभी तक गर्म है, लेकिन बहरहाल इतना गर्म नहीं है कि इसको हाथ ना लगाया जा सके। लेकिन अंदर आप देखें कि बाकायदा तौर पर धुआं उठ रहा है, वो आपको नजर आ रहा होगा इस खिड़की से। और ये लोहे की छत है ऊपर और लोहे की छत गर्मी की वजह से टेढ़ी हो चुकी है और ये गार्डर्स आप देख रहे हैं, ये गार्डर्स आमतौर पर काफी हीट बर्दाश्त कर सकते हैं और काफी भारी लोहा होता है, लेकिन आप ये भी देख लें कि बाकायदा तौर पर ये टेढ़े हो चुके हैं। अब जरा जना हाउस के इसी कमरे का मैं आपको मंजर दिखाता हूं, जरा मेरे करीब आना। आप ये देख सकते हैं कि यहां पे आपको अब भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक शेड है, जनरेटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो वहां पर भी सूरत हाल है। ये एमएस स्टाफ, गालिबन कोई जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पे बैठते होंगे, तो उनका भी उस कमरे की हालत भी देखिए। घर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर आग ना लगी हो, हर तरफ से आग के असरात आपको नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं।